بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں نعیم محبوب اور آج ایک نئے ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور میرے ساتھ اس وقت سینئر جرنلسٹ رانا ابرار صاحب موجود ہیں، جو کہ توشہ خانہ کے روح رواں بھی ہیں، اور عدالت میں ان کی درخواست پہ ایک سماعت بھی جاری ہے، اور انفارمیشن کمیشن آف پاکستان میں بھی وہ توشہ خانہ کا کیس پینڈنگ چل رہا ہے۔ یہ گزشتہ 18 ماہ سے یہ جنگ لڑ رہے تھے حقائق جاننے کے لیے۔ انہوں نے باضابطہ ایک قانونی جو طریقہ کار ہے انفارمیشن ایکٹ کے تحت، کوئی بھی کسی بھی سرکاری ادارے سے کوئی بھی شہری انفارمیشن لے سکتا ہے، اس ایکٹ کے تحت انہوں نے باضابطہ اپلائی کیا تھا انفارمیشن کمیشن آف پاکستان کو، لیکن آج تک بدقسمتی سے ان کو وہ تفصیلات نہیں مل سکیں۔ بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، ماضی میں حکومت کی جانب سے ہائی کورٹ اسلام آباد میں یہ جواب داخل کرایا گیا تھا ان کی اپلیکیشن پہ یا ان کی درخواست پہ کہ یہ بڑا حساس میٹر ہے اور بڑا حساس معاملہ ہے، ہم یہ انفارمیشن عدالت کو پرووائڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ اب حکومت جا چکی ہے۔ تو میں صرف اس وقت سوشل میڈیا پہ یہ ٹرینڈ بھی چل رہا ہے توشہ خانہ، تو میں نے کہا کہ آج کیوں نہ رانا ابرار صاحب سے ڈائریکٹلی بات کی جائے کہ آخر یہ معاملہ ہے کیا، توشہ خانہ کے قواعد و ضوابط کیا ہیں، قوانین کیا کہتے ہیں، کیا توشہ خانہ سے آپ جو تحفہ خریدتے ہیں وہ اپنی ذات کے لیے خریدتے ہیں یا کسی کاروبار کے لیے خریدتے ہیں، کہ آپ نے ایک طرف تحفہ کوئی خریدا کوڑیوں کے مول یا نصف قیمت پہ، اور اگلے ہی روز آپ نے اس کو فروخت کر دیا مارکیٹ میں، کیا اس کی اجازت ہے؟ تو رانا صاحب ویلکم آپ کو جناب۔ آپ ہمیں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ توشہ خانہ کے معاملات جو سخت بڑے سوشل میڈیا پہ، اور پی ٹی آئی کے لوگ، پی ٹی آئی کے وزراء، ایون دیٹ کے چیئرمین پی ٹی آئی یہ خود بھی کہہ چکے ہیں کہ میرا تحفہ میری مرضی، تو یہ کیا معاملات ہیں؟ ایسا ہے؟ دیکھیں، آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اپنے فیصلے میں، اپنے آرڈر میں اس کو کلیئر کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، جو میرا تحفہ میری مرضی ہے نا، انہوں نے کہا کہ یہ نہیں چلے گا۔ تحفہ بندے کو، پرسن کو نہیں دیا جاتا، تحفہ وزیر اعظم کو نہیں دیا جاتا، اسٹیٹ کو دیا جاتا ہے، تحفہ اسٹیٹ کو اور آفس کو دیا جاتا ہے۔ ٹھیک انہوں ہے، نے کلیئرلی کہا کہ انہوں نے کہا تحفہ آفس کو دیا جاتا ہے، ریاست کو یا اس عہدے کو دیا جاتا ہے۔ ہاں، انہوں نے کہا کہ مجھے امریکہ میں ایک شیلڈ ملی تھی، وہ میں اپنے گھر سیدو شریف نہیں لے جاؤں گا، بلکہ میں اپنے آفس میں چھوڑ کر جاؤں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آفس کے لیے ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ جو بات کی جاتی ہے نا، میرا تحفہ میری مرضی، آپ کا تحفہ نہیں ہے، ریاست کا تحفہ، اور قانون کی مرضی چلے گی، آئین کی مرضی چلے گی اور عدالت کی مرضی چلے گی۔ یعنی کہ یہاں پہ کسی کی ذاتی مرضی کا کوئی معاملہ ہے نہیں، ذاتی مرضی کا معاملہ نہیں ہے، جس طرح کہ عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے یا عوام کو بتایا جا رہا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ آج میں مشکور ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ایک آرڈر پاس کیا ہے اور 15 دن میں حکم دیا ہے کابینہ ڈویژن کے سیکرٹری کو کہ یہ تمام تفصیل جو کہ میں نے مانگی تھی 23 نومبر 2020 کو میں نے مانگی تھی، وہ تمام تفصیل دے دی جائے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں 2-3 چیزیں جو ہے نا وہ بڑی اہم ہیں جی، کہ آج کل ایک ڈاکومنٹ بھی انٹرنیٹ پر پھر رہا ہے، ایک ویب سائٹ ہے فیکٹ فائنڈنگ، ایک ویب سائٹ پہ انہوں نے لکھا ہے کہ اتنے، اچھا وہ ڈاکومنٹ میں آپ کو بتاؤں کہ ملی بھگت سے عمران خان کو تحفظ دینے کے لیے لیک کیا گیا۔ اچھا، اوکے، وہ ایسے لیک کیا گیا کہ جو میں نے مانگی تھی نا تحفوں کی لسٹ، انفارمیشن مانگی تھی، اس میں نے کہا کہ ہر تحفے کی ڈیٹیل اسپیسیفیکیشن بتائی جائے، اس کا ماڈل، اس کی اسپیسیفیکیشن، اس کا مٹیریل کے بارے میں معلومات دی جائیں تاکہ اس کی اصل قیمت کا پتہ چل سکے۔ اس کا میں آپ کو یوں بتاؤں کہ وہ جو لسٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے ایک رولیکس گھڑی۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، میں نے رولیکس کی ویب سائٹ اوپن کی اور جب میں اس میں گیا تو کوئی وہاں پر گھڑیوں کے 400 ماڈل ہیں۔ دیکھیں وہاں ہزاروں سے سٹارٹ ہوتے ہیں، وہ کروڑوں میں گھڑی ہیں، ایسے ہی کم از کم روپوں میں 40,000 روپے کی گھڑی ہے، اور زیادہ سے زیادہ 25 کروڑ روپے کی میں نے دیکھی۔ جی جی، ایسے ہی ہے۔ اچھا، اب اس میں ماڈل نہیں ہے، بس مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی تحفہ ریٹیل کرتا ہے، وزیر اعظم ہو یا صدر ہو یا وزیر ہو، تو ڈپٹی سیکرٹری انچارج توشہ خانہ جو ہے اس کی ثوابدید ہے، اس کی پرائس کیا ڈٹرمن کرتا ہے؟ نہیں، وہ ثوابدید ہے یا اس نے مارکیٹ ویلیو کے مطابق اس کی قیمت لگانا ہوتی ہے؟ رول تو مارکیٹ ویلیو کے ہیں، لیکن مارکیٹ ویلیو اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ اپریزر بلائیں مارکیٹ سے، ٹھیک ہے، وہ خود ہی اس کی پرائس ڈٹرمن کرتا ہے۔ یعنی بیسیکلی وہ اس کی ذمہ داری ہے، اس نے جا کے اس کو چیک کرنا ہے کہ یہ کھلے گی کہ جب اس ہر تحفے کی اسپیسیفیکیشن بتائی جائے گی تو مارکیٹ ویلیو تو ہر کسی کو پتا ہے، اور کمپنیوں، خاص طور بڑی کمپنیوں کی ویب سائٹ کے اوپر پرائسز کی ڈیٹیل موجود ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ ڈپٹی سیکرٹری توشہ خانہ محمد احد صاحب نے
जिस घड़ी की कीमत 38 लाख रुपए डिटरमिन की है वो एक्चुअली कितने की थी? बिल्कुल। अच्छा, क्या मैं कहता कलाम माफ राना साहब, ये मेरा अपनी ज़ाती राय भी यही है, मैं और इस बारे में सोच भी रहा था कि ये खाली मामला वज़रा या हुकूमत या हुकूमती अहदेदारों की हद तक नहीं है, बल्कि इसमें वो तमाम लोग अफसरान भी शामिल हैं जो ज़िम्मेदारान हैं, जिन्होंने उसकी कीमत का तयन करना था, जिसको उसको फ्री एंड फेयर कह लें जिसको। असल मसला ही उनका है कि और वो उसमें मेरा ख्याल है कि सेक्रेटरी कैबिनेट भी आएंगे जी। सेक्रेटरी कैबिनेट अहमद जो है उन्होंने खुद कहा, अगर उन्होंने किसको फायदा दिया है, उन्होंने कहा था कि वफाकी हुकूमत से बड़ा बदमाश कोई नहीं होता, मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन नहीं लेने दूंगा। अच्छा, ये आपको डायरेक्टली सुखेरा साहब ने क्या कहा? जी, सुखेरा साहब ने कहा था कि वफाकी हुकूमत से बड़ा बदमाश कोई नहीं होता। अच्छा, मैं जब तक हूँ आपको इन्फॉर्मेशन नहीं लेने दूंगा। आज मैंने यही, लेकिन अभी तो हुकूमत से भी, अब तो वो मौजूद है, अब भी मौजूद है, मौजूदा हुकूमत को मैंने यही गुजारिश की है कि इस सेक्रेटरी के होते हुए, चाहे कोर्ट ने ऑर्डर भी दे दिया, हाई कोर्ट ने, मुझे शक है कि ये फिर भी अमल दरामद नहीं होगा। इसको वजीर आजम साहब को गुजारिश है, शहबाज शरीफ साहब को, कि इसको क्लियर इंस्ट्रक्शन जारी की जाए कि ये 2-3 दिन के अंदर तमाम इंफॉर्मेशन दे दें। और इंफॉर्मेशन का दूसरा पार्ट जो है ना, वो ये है जो मैंने मांगा था कि जो पेमेंट की है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने, वो किस अकाउंट से हुई है और किस अकाउंट से, अपने किस अकाउंट से की है, उसकी तफसीलात भी दें, ताकि ये देखा जाए कि आया वो पेमेंट अदायगियां कहाँ से आई हैं। और राना साहब, मुझे आज एक और जो टोकन मनी पेमेंट हुई है, क्या वो भी इमरान खान के जाती अकाउंट से हुई है? अच्छा राना साहब, इसमें एक और बड़ा अहम पहलू है। मैं आज FVR के चंद दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और वो जो कह रहे थे कि इसमें हम ये भी देखेंगे कि क्या इन्होंने जो तोहफे खरीदे हैं उनकी अमाउंट कहाँ से मैनेज हुई, किस आमदन से मैनेज हुई, और क्या वो उन्होंने अपने अकाउंट से वो पेमेंटें की, और क्या उनको अपने एसेट्स में उन्होंने अपनी रिटर्न में इसको शो किया। ये भी मामला है जो टैक्स एविजन के मामले में भी आता है। तो मेरा ख्याल है कि एक पनोड़ा बक्स बहुत जल्द ये भी खुलने वाला है। वो तो आएगा। पहले मुझे ये बताएं कि आप किसी को तोहफा देते हैं जी, किसी दोस्त की बर्थडे के ऊपर या किसी शादी के ऊपर आप तोहफा देते हैं, जो कि हम लोग अक्सर देते होते हैं। जी ऐसे ही आपको पता चले कि आपके दोस्त ने तोहफा जाकर मार्केट में बेच दिया है, आपको कितना बुरा लगेगा? इससे घटिया बात हो ही नहीं सकती है। ये है कि पाकिस्तान का वजीर, किसी और मुल्क के वजीर आज़म की मिसाल है आपके सामने कि उसने मार्केट में तोहफा बेच दिया हो, और वो तोहफा जिसकी कोडिंग हुई है, कोड है जिसका इंटरनेशनल कोड है, और जब वो घड़ी बिकने के लिए गई रोलेक्स के स्टोर पर तो उन्होंने कोड मांगा, इनके पास कोड नहीं था, क्योंकि जो तोहफा देने वाले डिक्टेटरीज हैं, हेड ऑफ स्टेट, उन्होंने कोड नहीं दिया, तो फिर रिसीट तो साथ में डब्बे में डाल देते ऐसे। वो तो मतलब तोहफा देते हैं, एक स्टेट को दे रहे हैं, स्टेट को दे रही है। अच्छा, अब उस कंपनी ने उनसे रब्ता किया, खरीदारों से जिन्होंने खरीदा था, तो उन वहीं से ये मामला सारा सोचे, एक मिनट के लिए सोचे कि पाकिस्तान का इमेज क्या बना होगा। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही जो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान की इज्जत में बड़ा इजाफा किया है, तोहफे की इंसल्ट की है, तोहफे की तौहीन की है, तोहफा प्रेजेंट करने वाले की तौहीन की है, और पाकिस्तान के फॉरेन इंटरेस्ट को डैमेज किया है। बिल्कुल ऐसे। मतलब मैं आपको नहीं, महबूब साहब, सच्ची बात है, करप्शन के हम खिलाफ हैं, लेकिन मेरा वजीर आजम ये अगर मोटरवे में 1 अरब रुपए की करप्शन कर लेता, हम फिर भी उसको कबूल कर लेते। चलो जरूरतमंद था यार, तोहफा ना भेजता, का मतलब ये हमारी जगह सही ना होती। नहीं, वो अभी तो वो एक बड़ा जवाब पेश करते नजर आते हैं कि बिल्कुल जी, वो मैंने घड़ी बेची और मैंने अपने घर के बाहर सड़क बनवाई है सीढ़ी से, और ये पेमेंट मैंने उनको अदा की, और वो भी मैंने चेक कर ली कि घड़ी तो करोड़ों रुपए की थी और करोड़ों में बेची भी गई है। और सीडीए के रिकॉर्ड के मुताबिक जो बनीगाला की उन्होंने अपने घर के पास जो इंटरनल बनीगाला के घर में सड़क आती थी, वो जो बनवाई उन्होंने सीडीए से, उसके लिए सीडीए को उन्होंने 30 लाख रुपया पे किया है। और क्या वो 14.5 करोड़ या 14 करोड़ में बेची जाने वाली घड़ी से सिर्फ 30 लाख रुपया वो भी अपने घर की गली या सड़क को तामीर करा के एक सरकारी इदारे से ये कह देना कि जी वो मैंने अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसको फ़रोख्त किया है, तो क्या ये जवाब काबिल कबूल होगा या आप इसको जायज़ समझते हैं? वो सड़क इनकी जाती है जी, ऐसे ही इनके 350 कनाल के महल के अंदर की सड़क है जी, ऐसे ही उसको कोई और शख्स इस्तेमाल नहीं करता। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि अगर वो सीडीए ने बनाई है, 30 लाख इन्होंने दिया भी है, तो उसमें बहुत से सीडीए के अपने ज़ाती वसाइल जो है वो सीडीए के बहुत से ज़ाती वसाइल लगे होंगे उस पर, बिल्कुल लगे, और वो मिस यूज ऑफ पावर है। इन्होंने तो सिर्फ मटेरियल के पैसे दिए हैं ना जी, उनके इंजीनियर, उनका अमला, उनकी मशीनें, उनकी मशीनरी, उनका टाइम,
सब कुछ उनका हुआ है, और ये इन्होंने कोई एहसान नहीं किया है अपने घर की सड़क बनवाकर 30 लाख रुपए में। बात यह है कि इन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन इंटरेस्ट को, पाकिस्तान के खारजी मफादात को डैमेज किया है। बेशक कुछ। और ये जो कहते हैं ना, आज तो हालांकि हाईकोर्ट ने क्लियर कर दिया, यही पीटीआई की हुकूमत थी 2019 में साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ ज़रदारी के खिलाफ तोशाखाना का रेफरेंस भेजा। इन्होंने भेजा था। और मैंने कल भी किसी दोस्त से ये बात की कि जिस शख्स ने तोशाखाना के रेफरेंस खुद भेजे अपने हाथों से, वो सीट पे बैठ के उस पावर को यूज करते हुए, गैर कानूनी पावर को यूज करते, जी अगली बात, और वही काम खुद कर रहा है। तो फिर पहलों में और उनमें फर्क क्या रह गया? रेफरेंस में नवाज शरीफ को एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करके नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी जो सेल हुई है वो तोशाखाना रेफरेंस में सेल हुई है। ठीक है। अब हमारे सामने एक मिसाल है, इससे वादे होता है कि तोहफे अंडर प्राइसिंग के साथ प्रेमा फिसाई के जरिए खरीदना और महंगे बेचना पाकिस्तान के जुर्म है। ये नैब एक्ट के अंडर फॉल करता है। नैब को मेरी रिक्वेस्ट है कि नैब को इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी चाहिए। जी बिल्कुल। चेयरमैन नैब ने चंद रोज पहले मीडिया से टॉक करते हुए इस बात का इजहार भी किया है कि बिल्कुल वो तोशाखाना के हवाले से इंक्वायरी शुरू कर चुके हैं, और इसमें जो लोग मुलव्वस होंगे वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वकास अजीम बड़ा अच्छा जर्नलिस्ट है, उसने क्वेश्चन किया था, बिल्कुल जो एश्योरेंस जी थी। अब हमारा मुतालबा है कि नैब के चेयरमैन को उस पर अमल करना चाहिए और इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करें। बहुत बड़ी बदनामी पाकिस्तान की नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब। जिस तरह कि आपने सुना है कि ये तोशाखाना के असल मामलात हैं क्या, लोगों को किस तरह गुमराह किया जा रहा है, और लोगों को कभी रियासत मदीना के नाम पे ब्लैकमेल करके गुमराह करने की कोशिश की जाती है, और असल में किरदार इनके क्या हैं। अपनी परफॉर्मेंस की बात ये लोग नहीं करते, क्योंकि परफॉर्मेंस में बताने के लिए इनके पास कुछ है नहीं है। पौने 4 साल इस हुकूमत ने जिस तरीके से, जिस अंदाज में इस मुल्क को चलाया, वो सब के सामने, 24 करोड़ आवाम के सामने है। जिस तरह आए रोज़ टैक्सेस बढ़ाए गए, जिस तरह आए रोज़ महंगाई और बेरोज़गारी का तूफान बर्पा किया गया, और इसके साथ बड़ी से बड़ी कैबिनेट्स बना के तमाम वसाइल इस्तेमाल किए गए, खुद अयाशियाँ की गई, खुद इंजॉय किया गया आवाम के और टैक्स के उस पैसे को, लेकिन आवाम को रिलीफ देने के लिए इन्होंने कोई कोशिश ना की। आज अपने जलसों में, अपने ट्विटर पैगामों में, अपने सोशल मीडिया पे उनकी पूरी टीमें एक मुनज़्ज़म साजिश कह लें, एक मुनज़्ज़म प्लान के तहत इस मुल्क के अवाम को तकसीम करने के दरपे हैं, ताकि इस मुल्क को इंतशार और अफरा तफरी में मुब्तला किया जाए और इस मुल्क को नुकसान पहुँचाया जाए। यही हक़ाइक़ हैं, और आने वाले वक्तों में बहुत से हक़ाइक़ आपके सामने फिर सामने आएंगे। इजाज़त दीजिए नईम महबूब को, राना इब्रार साहब को। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया।